Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, friends. Today we are coming up with microbiology lecture 4. I hope you enjoy my videos and please subscribe and like. Please subscribe and like my channel and share it if you like my videos. That will be the encouragement for me. So due to some work at my home, I was unable to make the videos, and since past 3 or 4 days I was having common cold, I was having flu symptoms, and I was unable to make the videos. Now coming up with this, inshallah, today Almighty Allah has again bestowed me this time to make a video on the microbiology lecture 4. Today we stopping wasting our time further, and we will directly come to the topic. So in the previous lecture, in the previous video, we have learned about the classification. We have already discussed about or told some things about the classification of microorganisms. Okay, now the classification, this is the classification of microorganisms. Okay, cellular organisms can be classified into 3 domains. Cellular organisms, the microbial taxonomists, they have classified cellular organisms into 3 domains. Okay, that is bacteria, archaea, and eukarya. Eukarya including all eukaryotes. I want to take few seconds from you, please. I want to just see whether the video is continuing or has it stopped. Okay, just I want to have a look. Okay, video is continued here. So the cellular organism, microbial taxonomists, उन्होंने cellular organisms को 3 डोमेन्स में इनको डिवाइड किया है, तकसीम मतलब किया है, रखा है 3 डोमेन्स में. ठीक, एक तो है बैक्टीरिया, ठीक, दूसरा है आर्किया एंड यूकेरिया इंक्लूडिंग ऑल यूकेरियोट्स. ओके, नाउ so before we will describe each one of them in detail, first I will take bacteria. Okay, then in the next video I will take archaea and eukarya. In this lecture series, in this lecture 4, I will take only bacteria. Okay, I will take only bacteria here. I will describe it in detail. But before describing this bacteria, first I want to tell you about the classification of bacteria. First I will just have the classification of bacteria on the basis of shape and on the basis of staining. Now I am going to rub this, the classification of microorganisms, the heading, that is the cellular organisms, the cellular. Okay, here it is cellular org is in short organisms. Cellular organisms can be classified into 3 domains. Number 1 bacteria, number 2 archaea, and number 3 eukarya including all eukaryotes. Okay, so microbial taxonomists ने इनको 3 डोमेन्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया. तो बट जो ये यूकेरिया है, असल में ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं है. ठीक है, असल में जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, असल में सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट्स ने 3 डोमेन्स में क्लासिफाई जब किया सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. सेलुलर तो वायरसेस एंड वायरियॉन्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, उनकी क्लासिफिकेशन अलग है. ठीक है, वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन, उनकी अपनी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, इनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. सो रबिंग इट बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, आई एम इन अ हरी मूड बिकॉज द लेक्चर मे बी गोइंग फॉर ऑलमोस्ट 30 minutes. I hope you enjoy this video. Now coming directly to the
bacteria. Okay. So I will write here classification of bacteria on the basis of shape. Classification of bacteria. Classification of bacteria on the basis of shape. On the basis of shape. किस बुनियाद पे? शेप की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन हम बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ऑलराइट. सो जो माइक्रोबियल टैक्सोनॉमिस्ट्स है उन्होंने क्लासिफिकेशन दी बैक्टीरिया की. पहले हम इनकी शेप की बुनियाद पे, इनकी जो बैक्टीरिया है उनकी शेप जो है उस बुनियाद पे हमने क्लासिफाई किया बैक्टीरिया को इनटू थ्री ग्रुप्स और कैन बी अरेंज्ड इनटू 3 ग्रुप्स. ओके. इनको 3 ग्रुप्स में अरेंज किया गया, क्लासिफाई किया गया. ग्रुप्स जो है इनके 3 ग्रुप्स जो है, ओके, वो क्या क्या है? वो है बैसिलस नंबर 1, बैसिलस या रॉडस. नंबर 2 कोकाई और सुफियरस. एंड जो नंबर 3 है, नंबर 3 जो है यहां पे, ये नंबर 3 है यहां पे सुपायरोकीटस. सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैसिलस, कोकाई और बैसिलस मीन्स रॉड. लुक, दिस इज रॉड शेप. ओके. बैसिलस मीन्स रॉड शेप. ओके. सो बैसिलस रॉडस में. ओके. फिर कोकाई जो है सुफियरस, ये सुफियरस में होते हैं. एंड सुपायरोकीटस नंबर 3 सुपायरोकीटस. यहां पे सुपायरोकीट है, ये यहां पे ट्रिपोनिमा पैलिडम है. ये जो ये सुपायरोकीट यहां पे है, ये सुपायरल में है. ठीक है. ये जो यहां पे मैंने इसको ब्लू कलर से फिर अंदर से इसको थोड़ा मार्क किया, ये सुपायरल्स है. ये सुपायरल्स स्प्रिंग की तरह होते हैं. ठीक है. इनको सुपायरल शेप में होते हैं. इनको बोलते हैं हम सुपायरोकीटस. तो बैसिलस, रॉडस, कोकाई जो है वो सुफियरस है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो यहां पे. लेकिन इनमें भी फिर जो सुफियरस है, ये जो कोकाई है, या तो हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस चेन्स में. ठीक. यहां पे ये जो है, यहां पे ये स्ट्रेप्टोकोकाई ये चेन्स में. एंड ये जो है बंचेस में, लाइक जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स हम बंचेस में ग्रेप्स होते हैं. जो ये ग्रेप्स होते हैं, जो ये अंगूर होते हैं, ये गुंचे जैसे होते हैं, मतलब इनको बंचेस होते हैं. तो ये जो है कोकाई, ये जो स्फेरिकल है ये कोकाई, ये बंचेस में है, ये ग्रुप जैसा है. ये बंचेस में ऐसे इन्होंने कॉलोनी बनाई है. ठीक है. तो ये ऐसे बंचेस में कॉलोनी बनाते हैं. इनको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई. और ये जो है, ये यहां पे ये बैसिलस है यहां पे. ठीक. ये जो बैसिलस है ये रॉडस में है. ये है ना बैसिलस, ये रॉडस. ठीक. ये रॉडस जैसे ये रॉड है, ये बैसिलस होते हैं. ठीक है. ये रॉडस है, ये बैसिलस होते हैं. ठीक. और ये सुपायरोकीट है, ये सुपायरल्स में. ठीक. और ये जो कोकाई है ये स्फेरिकल होते हैं. तो ये बैक्टीरियल शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप. Microbial taxonomists have classified or arranged bacteria into 3 groups: Bacillus, rod shape, Cocci or Sphaerus. Okay. Sphaerochetus number 3, Sphaerochetus in the form of spirals. ठीक. ये हुई on the basis of shape. On the basis of shape. So हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो ये बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ शेप 3 ग्रुप्स में. जैसे ये है बैसिलस रॉड शेप, ये रॉड से. ठीक है. ये यहां पे इसको न्यूक्लियस है. ठीक है. ये यहां पे हम इसको साइटोप्लाज्म, हाँ, बैक्टीरिया का जो ये न्यूक्लियर, असल में बैक्टीरिया में इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल इसमें है विद इन साइटोप्लाज्म.
विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये हुआ बैसिलस, ठीक। अब यहाँ पे कोकाई, कोकाई जो होते हैं, कोकाई जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। अगर ये चेन्स में होंगे, कोकाई अगर चेन्स में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। अगर अब बंचेस में होंगे, जैसे यहाँ पे ये जो बंचेस में है, जैसे लाइक ग्रेप्स, ठीक, ये जो बंचेस में है यहाँ पे, तो ये है स्टेफाइलोकोकस, ये है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चेन्स में होते हैं, स्टेफाइलोकोकस बंचेस जैसे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। ये कोकाई होते हैं, ये जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे स्पाइरोकीटस, स्पाइरोकीटस नंबर 3। स्पाइरोकीटस जो होते हैं ये ऐसे स्पाइरल्स में होते हैं, ठीक है। स्पाइरोकीटस जो होते हैं ये ऐसे स्पाइरल्स में होते हैं, ठीक है। ये स्पाइरोकीट है, जैसे यहाँ पे ये ट्रिपोनीमा पैलिडम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रिपोनीमा पैलिडम, ऑलराइट। सो फिर दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। Classification of bacteria on the basis of staining. I'm sorry, light just got off, so I may end up here this video. In the next video, I will make the next video just after a light is restored back. I will in that video lecture I will talk about, मैं इस बारे में बात करूंगा कि जो ये on the basis of staining, on the basis of staining. Next topic जो हैगा on the basis of staining, स्टेनिंग की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग की बुनियाद पे, स्टेनिंग जो है इस बुनियाद पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। जैसे ग्राम स्टेनिंग है, जैसे ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग, ओके, ग्राम स्टेनिंग है, और AFB और एक स्टेनिंग है जैसे AFB, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग है। हम स्टेनिंग का प्रिंसिपल भी इन द नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, जैसे कि एसिडिक पार्ट्स ऑफ ए सेल रिएक्ट विद बेसिक डाइज, या बेसिक पार्ट्स या अल्कलाइन पार्ट्स ऑफ ए सेल रिएक्ट विद एसिडिक डाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम इश्यूज विद द लाइट, एज द लाइट गॉट ऑफ, ओके। So I may end up this video here. Please subscribe this YouTube channel, okay? Inshallah the light got restored back. We will continue, okay? We will continue this on the basis of staining, on the basis of staining. तो स्टेनिंग की बुनियाद पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो स्टेनिंग है, हम दो स्टेनिंग, जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेनिंग इज ग्राम स्टेनिंग, और फिर स्पेसिफिक स्टेन्स भी है, जैसे AFB है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ऑलराइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, लेकिन स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है हमें पता है। अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें जो ये साइटोप्लाज्म, ये ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म जैसे है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म सेल का ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है सेल का, ठीक है। तो अल्कलाइन होता है, और जो यहां पे सेंटर में इधर न्यूक्लियर मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया का, ये जो है न्यूक्लियर मटेरियल, ये तो एसिडिक होता है। तो स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल है, स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग? स्टेनिंग का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, ठीक। जो एसिडिक पार्ट्स, जो सेल के एसिडिक पार्ट्स होते हैं, दैट स्टेन, दैट रिएक्ट विद बेसिक डाइज, ओके, बेसिक डाइज, जैसे मिथाइलिन ब्लू है। तो एसिडिक पार्ट्स जो होते हैं, एसिडिक पार्ट्स ऑफ ए सेल रिएक्ट, एसिडिक पार्ट्स ऑफ ए सेल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग। एसिडिक पार्ट्स ऑफ ए सेल रिएक्ट विद, acidic parts of a cell react with I'm sorry, acidic parts of a cell, acidic parts of a cell react with, acidic parts of a cell react with
basic dyes. Basic dyes, acidic parts of a cell react with basic dyes, and basic or alkaline parts, or basic and alkaline. Basic, so acidic parts of a cell react with basic dyes, and basic or alkaline parts of a cell react with acidic parts, react with alkaline or basic parts of a cell react with acidic dyes. So this is the principle of staining. Principle of staining क्या है? अब जो सपोज कीजिए ये जो है ये एसिडिक पार्ट सेल का है, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो एसिडिक पार्ट जो सेल का है, ये जो डाई है, जो बेसिक डाई है, जो अल्कलाइन डाई है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो बेसिक पार्ट है या अल्कलाइन पार्ट है सेल का, जैसे साइटोप्लाज्म और दूसरी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के या सेल ऑर्गेनेल्स है, तो वो करेंगे रिएक्ट, जो बेसिक अल्कलाइन पार्ट्स है वो रिएक्ट करेंगे विद एसिडिक डाइज, विद एसिडिक डाइज। एसिडिक डाइज, ठीक, ये है प्रिंसिपल स्टेनिंग का। अब जो है ये हमने प्रिंसिपल देखा स्टेनिंग का। अब हम जो ये है बैक्टीरिया जो क्लासिफिकेशन है, जैसे हम ग्राम स्टेनिंग, ओके, ब्रीफली स्पीकिंग अबाउट हियर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो है, ये जो ग्राम स्टेनिंग है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको ये इस स्टेन को प्रिपेयर किया था, इसको दिया था ग्राम स्टेनिंग को। हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स, यहां पे क्लासिफिकेशन चल रही है, इसको हम इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियोस होगा इसमें हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं वो सारा हम देखेंगे। तो ये स्टेनिंग किस लिए हम करते हैं? इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द सेल्स इन माइक्रोस्कोप। सो ये जो है ऑन द बेस ऑफ स्टेनिंग, हम जो है स्टेनिंग का प्रिंसिपल हमने देखा कि एसिडिक पार्ट्स जो सेल के होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद बेसिक डाइज या बेसिक स्टेन्स, और जो बेसिक पार्ट्स या अल्कलाइन पार्ट्स सेल के होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद किसके साथ? एसिडिक या एसिडिक डाइज या एसिडिक स्टेन्स। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है, हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे तो या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। ओके, सो देयर आर सम लाइट इशू, इंशाल्लाह आप कुदरती ये लाइट ठीक हुई तो हम हम यहां पे बोलेंगे कि जो बैक्टीरिया है ग्राम स्टेनिंग की बुनियाद पे हम इसको ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव, या ग्राम पॉजिटिव या होगा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो इसने स्टेन को रिटेन किया, हाँ रिटेन करता है स्टेन को, लेकिन ग्राम नेगेटिव स्टेन को रिटेन नहीं करता है आफ्टर डिकोलराइजेशन स्टेप। तो ये जो ग्राम नेगेटिव है ये स्टेन को रिटेन नहीं करता है और ग्राम पॉजिटिव स्टेन को रिटेन करता है, और हम वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, चाहे ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वी आर एबल टू विजुअलाइज एंड वी आर एबल टू डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। बिकॉज क्योंकि जो हम माइक्रोस्कोपी, फिर बाद में हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं। हम स्टेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि टू डिफरेंशिएट द साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स एंड न्यूक्लियर पार्ट्स और साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग देखने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल। सो हम स्टेनिंग करते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव जो रिटेन स्टेन करेंगे और ग्राम नेगेटिव जो स्टेन रिटेन नहीं करेंगे। तो ऐसे ही और एक स्पेसिफिक स्टेन है जैसे AFB। तो यहां पे दो टाइप्स आए अब, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। ऐसे ही है AFB, एसिड फास्ट स्टेनिंग, AFB एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ये जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है, ये हम इस स्टेन को भी इस्तेमाल करके हम इसको बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे एसिड फास्ट पॉजिटिव एंड नॉन एसिड फास्ट। एसिड फास्ट पॉजिटिव जो होगा और जो नॉन एसिड फास्ट होगा। जैसे हम जो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है, जैसे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, किनको? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट स्टेन ये पकड़ता है, ये एसिड फास्ट पॉजिटिव है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये भी एसिड फास्ट पॉजिटिव है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वेल नोन फॉर दिस पैथोजन, जो ये पैथोजन है, पैथोजन मीन्स विच कॉजेज डिजीज, जिससे बीमारी लग जाए उसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो हम यहां पे यूज करेंगे वर्ड पैथोजन। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उससे आम सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, लेप्रोसिस, दिस पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रोसिस। तो ये एसिड फास्ट स्ट्रेन है, ये हम बैक्टीरिया को एसिड फास्ट पॉजिटिव, जैसे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एंड नॉन एसिड फास्ट, जैसे यहां पे एसिड फास्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आई होप यू एंजॉय द वीडियो बेटर। सो मैंने बहुत कोशिश की कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए। इंशाल्लाह आप सबसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरी चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बैक्टीरिया को हम अच्छे से एक्सप्लेन और इन डिटेल में देखेंगे।